Hello, seated aspirants. A very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu. आज की क्लास में हम सीटेड दिसंबर 2018 के पेपर वन इंग्लिश लैंग्वेज को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को इन शॉर्ट समझने की कोशिश भी करेंगे। क्वेश्चन को और इसके नेचर को क्वेश्चन के समझने के लिए इस क्लास में बने रहें। तो चले आज हम शुरू करते हैं पेपर वन लैंग्वेज वन के लिए, और ये 91 से 120 तक ये 30 क्वेश्चन रहता है। इसमें आप देखेंगे ऊपर सबसे पहले आपको इसमें दिखेगा, और इस इम्पोर्टेंट नोटिस को ऊपर देख ले। कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 91 to 120 इफ़ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज वन ओनली। तो जिन्होंने इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज वन चूज़ किया है वो 91 से शुरू करेंगे और 120 तक सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। और इस वीडियो को शॉर्ट में और 2 पार्ट में हमने बांटने की कोशिश की है, इसीलिए आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और फिर 15 दूसरे पार्ट में हम लोग करेंगे। तो ज़्यादा लंबा ना करते हुए शॉर्ट में हम लोग शुरू करते हैं। डायरेक्शंस: रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। क्वेश्चन नंबर 91 to 99 बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट और मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। अब इसमें ये जो डायरेक्शंस दिए हुआ है ये पैसेज के लिए है कि इस पैसेज को पढ़ने के बाद 91 से 99 क्वेश्चन तक इसमें इसको अटेम्प्ट करना है। और ये सारे 91 से 99 तक जितने भी क्वेश्चन हैं ये सिर्फ इस पैसेज से पूछे गए हैं। तो चलो पैसेज को शुरू करते हैं। पैसेज जो है यहाँ से शुरू होता है। When it comes to structures that are both majestic and well fortified, the classic European castles is the pinnacle of design. Across the ages, castles changed, developed, and eventually fell out of use, but they still command the fascination of our culture. Paragraph 2 है, castles were originally built in England by Norman invaders in 1066. As William the Conqueror advanced through England, he fortified key positions to secure the land he had taken. Castles also served as bases of operation for offensive attacks. Troops were summoned to organize around and deployed from castles. In this way, castles served both offensive and defensive roles in military operations. इसके बाद वाले पैराग्राफ में देखेंगे आप, not limited to military purposes, castles also served as offices from which the lord would administer control over his fiefdom. They would address disputes, handle business, feast, and enjoy festivities. In this way, castles served as important social centers in medieval England. Castles also served as symbols of power. Next paragraph देखते हैं. The first castles constructed in England were made from earth and timber. Those who constructed them took advantage of natural features such as hills and rivers to increase defenses. Since these castles were constructed from wood, they were highly susceptible to attacks by fire. Wooden castles were gradually replaced by stone, which greatly increased the strength of these fortifications. However, being made from stone did not make these castles entirely fireproof. Attackers could hurl flaming objects into the castle through the windows or ignite the wooden doors. Last paragraph देखते हैं. The demise of castles can ultimately be attributed to gunpowder. During the 15th century, artillery became powerful enough to break through stone walls. This greatly undermined the military role of castles. Castles were then replaced by artillery forts that had no role in civil administration and country houses that were indefensible. Though castles no longer serve their original purposes, remaining castles receive millions of visitors each year from those who wish to experience these majestic vestiges of a time long past. तो यहाँ पर पैसेज को कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 91 से हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 91, which one of the following is not a function of castles as expressed in this passage? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे. 4 ऑप्शन में आप castles served both offensive and defensive purposes military. Castles served as symbols of power. Castles were important social centers in medieval England. Castles were the places where knights would keep their best horses. जैसा कि यहाँ पे 91 क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट. नॉट को थोड़ा आप बोल्ड देख रहे होंगे.
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? फॉलोइंग फंक्शंस कैसल्स का नहीं है। तो जो नहीं है, आपने ऊपर पैसेज में देखा होगा, कैसल्स सर्व बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पर्पसेस, कैसल सर्व एज सिंबल्स ऑफ पावर, ये भी है। जैसे आपको यहाँ पे आपको सिंबल्स ऑफ पावर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कैसल्स फॉर इंपॉर्टेंट सोशल सेंटर्स इन मिडिवल इंग्लैंड, ये भी आपका ऑप्शन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट सोशल, है ना। तो कैसल्स वर प्लेसेस वेयर नाइट्स वुड कीप देयर बेस्ट हॉर्सेस, ये ऑप्शन 4 जो है ये राइट आंसर है आपका। ओके 92 में देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन आइडिया इन पैराग्राफ 2। अब पैराग्राफ 2 को जब आप देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें आपको जो मेन आइडिया है वो देखने को मिलेगा क्या है ना। तो बहुत सारे फैक्चुअल नॉलेज है यहाँ पे। ऑप्शंस देखते हैं, इट डिस्क्राइब्स हाउ एंड वाई विलियम द कॉन्करर took control of England. Option 2, it explains why castles were first built in England and the military purposes they served. Option 3 में देखते हैं, it shows how Norman lords were often scared and frequently retreated. Option 4, it details all of the purposes that English castles served. अब इसमें ऑप्शन जो है 92 का जो बेस्ट ऑप्शन है 92 का, वो ऑप्शन 2 है। इट एक्सप्लेन्स वाई कैसल्स वर फर्स्ट बिल्ट इन इंग्लैंड एंड द मिलिट्री पर्पसेस दे सर्व्ड। जब आप पैराग्राफ 2 पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 92 का सही ऑप्शन है। 93, द ओरिजिनली कैसल्स वर फर्स्ट मेड फ्रॉम अर्थ एंड टिम्बर बिकॉज, जैसा कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देख रहे होंगे, ऑप्शन takes a lot more time and energy to build a stone castles. It did not occur to people to build castles out of stone. People did not realize how weak wooden castles would be against fire. Wooden castles were prettier than dirty stone castles. Option number 1 सही लग रहा है, it takes a lot more time and energy to build a stone castles. तो उस ज़माने में स्टोन कैसल बनाने में बहुत एनर्जी और बहुत टाइम लगता था, इसीलिए वो लोग नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके कैसल्स बना लिया करते थे। ठीक है, उसके बाद जब फायर और ये सारी चीज़ों का, विंडो से फायर लगा देना या वुडन गेट पे जो है ना फायर आग लगा देना, ये सारी चीज़ें जब होने लगी जंग में, तो फिर वो स्टोन का बनाने लगे। आपको पैसेज में ऐसा दिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, वुडन कैसल्स वर कन्वर्टेड टू स्टोन कैसल्स एज। ऑप्शन 1, वुडन कैसल्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू बिल्ड, वुडन कैसल्स आर अनकम्फर्टेबल। ऑप्शन 3, स्टोन कैसल्स offer better defense. Option 4, stone castles stay cooler in the summer. 94 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, स्टोन कैसल्स ऑफर बेटर डिफेंस। क्वेश्चन नंबर 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ गन पाउडर वाज द nemesis of traditional castles. Wars were fought with guns and hiding in castles were no longer necessary. Option 1. Option 2, artillery forts with large cannons became more stylish than traditional castles. Option 3, defending castles grew difficult since attackers could just shoot castles defenders. Option 4, cannons were able to knock down stone walls, so castles offered little protection. Option 4 हो जाएगा सही आंसर। अब चलते हैं 96 क्वेश्चन नंबर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग titles would best describe the content of this passage? William the Conqueror, bringing castles to England, defending the castle, technologies used to defend medieval castles, a short history of castles, the rise and fall of castles in England, fancy living. Option 4, fancy living, learning about castles, replaces and fortresses. तो आपको 96 का जो है ऑप्शन 3 सही आंसर है, A short history of castles, the rise and fall of castles in England. क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं और देखते हैं 97 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपिनियन। इसमें जो है ओपिनियन कौन सी है? स्टोन इज मोर रेजिस्टेंट टू फायर देन वुड। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, विलियम द कनकरर बिल्ड द फर्स्ट कैसल्स इन इंग्लैंड। ऑप्शन 3, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट कैसल्स नो लॉन्गर सर्व their original purposes. Option 4, castles were used as offices of administration during the Middle Ages. 97 का जो सही आंसर है वो 3 है, it is unfortunate that castles no longer serve their original purposes. 98, choose a word from the given options which means almost the same as the word wastages used in the passage. अब wastages का क्या मतलब होगा वो पैसेज में उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। रिमाइंडर, आउटस्कर्ट्स,
फैरागो क्रिएशन। 98 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है रिमाइंडर वेस्टेजेस का। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में आप देखेंगे, चूज अ वर्ड विच सर्व्स एज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड पिनेकल। पिनेकल का क्या एंटोनिम है? एंटोनिम किसे बोलते हैं? अपोजिट वर्ड को। तो नादिर, क्रेस्ट, एपेक्स, स्टेपल। अब 99 का जो है पिनेकल का नादिर है ना। ये आपका ऑप्शन 1 जो है सही आंसर है, नादिर। तो ये था पैसेज का जो जितना भी क्वेश्चन था 91 to 99, ये हमने देखा। अभी हम देखते हैं, एक पोम भी आती है और पोम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं उसे देखते हैं कैसा होता है। यहाँ पे एक पोम दी गई है, डायरेक्शंस, जो हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ पे। तो पहले पोम को एक बार देख लेते हैं हम यहाँ से। माई मदर बोर मी इन द साउदर्न वर्ल्ड एंड आई एम बैक, बट ओ माई सोल इज़ वाइट, वाइट एज एन एंजल इज़ the English child, but I'm black as if bereft of light. My mother taught me underneath a tree, and sitting down before the heat of day, she took me on her lap and kissed me, and pointing to the east, began to say, look on the rising sun, there God does live, and gives his light and gives his heat away, and flowers and trees and beasts and men receive comfort in morning, joy in the noonday, and we are put on earth a little space that we may learn to bear the beams of love, and these black bodies and this sunburned face is but a cloud and like a shady grove. अब यहाँ तक पोम थी। क्वेश्चन नंबर 100 पे देखते हैं। द लिटिल ब्लैक बॉय वॉज बोर्न इन द डिजर्ट वेस्ट, द सर्वेंट्स हाउस, द साउदर्न वाइल्ड, द ईस्ट कोस्ट। अब जैसे पोम का पहली ये दूसरी लाइन में आप देखेंगे द साउदर्न, यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं आपके, द लिटिल ब्लैक बॉय वॉज बोर्न इन क्वेश्चन नंबर 100 के, द डिजर्ट वेस्ट, द सर्वेंट्स हाउस, द साउदर्न वाइल्ड, द ईस्ट कोस्ट। द साउदर्न वाइल्ड इज राइट आंसर। 101 क्वेश्चन नंबर 101 जब आप देखते हैं, द लिटिल ब्लैक बॉय विश दैट ही कुड बी एजुकेटेड, ही कुड बी ओल्डर, ही कुड बी फ्री, ही कुड बी वाइट। तो इसमें ब्लैक बॉय इससे पता चलता है वो ब्लैक था, तो ही कुड बी वाइट, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेज गॉड पुट पीपल ऑन अर्थ, गॉड पीपल ऑन अर्थ। यहाँ पे जो है 102 का पहला ऑप्शन है टू लर्न टू इंड्योर हिज लव, टू वर्क ऑफ देयर सिंस, टू प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर ट्रायल्स, टू लर्न हाउ टू ट्रीट वन अनदर एज इक्वल्स। तो इसमें ऑप्शन 1 जो है आपका राइट आंसर है, टू लर्न टू इंड्योर हिज लव। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। द मदर ऑफ द लिटिल ब्लैक बॉय सेज हिज डार्क स्किन एंड फेस आर अ ब्लेसिंग, अ वेल, कर्स, अ क्लाउड। तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 103 का ऑप्शन नंबर 4 अ क्लाउड। पोम के लास्ट में आप देखेंगे जब बर्न फेस इज बट अ क्लाउड, है ना। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। अब 104 में द फ्रेज लाइक अ शेडी ग्रोव इज अ मेटाफर। अब ये आपका थोड़ा सा आपको लिटरेरी डिवाइस या कह लीजिए फिगर ऑफ स्पीच जिसे हम बोलते हैं, उससे क्वेश्चन एक पूछा गया है। तो ऐसा एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपको। तो कुछ फेमस और बेसिक लिटरेरी डिवाइस की आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में द फ्रेजेस लाइक अ शेडी ग्रोव इज अ मेटाफर, अ सिमिली, एन एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन और अ पर्सोनिफिकेशन। तो ये 4 ऑप्शन में आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिमिली, ये राइट आंसर है 104 का। क्वेश्चन नंबर 105 आपका थ्रू द फ्रेजेस एज इफ ब्रेव्ड ऑफ लाइफ द पोएट हिंट्स एट। अब यहाँ पे पोएट कहना क्या चाह रहा है? ऑप्शन 1 लो सेल्फ स्टीम ऑफ द चाइल्ड, ऑप्शन 2 लैक ऑफ होप फॉर फ्यूचर, ऑप्शन 3 कलर ऑफ द बॉय, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे आपको जो है ना चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सही है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी लेंदी वीडियो होती जा रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है।
Thank you all. Have a good day.